ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण जय स्वामीनारायण। नमो भगवते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमस्ते नमस्कार। That day I told about Lord Swaminarayan. Who is Lord Swaminarayan really? But I didn't post the video uh, in my YouTube channel. I didn't post. I didn't post. So that is the storage problem and the network problem. So that day I told the video, but I didn't post my YouTube channel the topic of Lord Swaminarayan. Huh? So today we will talk about that day I told the same topic, but I didn't post the video. Yes. So today we will talk about Lord Swaminarayan. Who is Lord Swaminarayan? In Gujarati Vaishnav, they will worship Lord Swaminarayan. Lord Swaminarayan also Lord Krishna's one incarnation. Krishna's Vishnu's one incarnation. So Swaminarayan, 1 minute, I will 1 minute. So let's start. I will suddenly pause the video. Now we will continue. So who is Lord Swaminarayan? This is one doubt is in our mind. In many years in Gujarati Vaishnav, Gujarati Vaishnav, they follow Lord Swaminarayan. Today I will make only 1 hour video. Okay. So because video is very big. So today I will very long video go, and storage is not that. So today I will try to complete in 1 hour video. Then I will stop only 1 hour, 1.5 hour only. Then I will stop the video because I will tell my topic. Tell my topic. Suppose I will telling continuously. Then that is the no enough my for topic. Today I will try to be stop in 1 hour video. So okay. So today I will tell topic is short, very short, not long. 1 hour video only. 10-15 minutes or 1 hour video. So today very not long, lightly short and lightly long, balancing today. So who is Lord Swaminarayan? Today we will discuss. First we will understood this. You know my YouTube channel is there. Venkatesh Shashi lecture, Venkatesh Shashi lecture, and Venkatesh Shashi 2 lecture channel. Then Venkatesh Shashi topic. I'll make the video, put the video. I will put the video in my channel. 3 years, past 3 years, 2022, 23, 24, now 25. This 25 also finished. Suppose complete, then 4 years completed. And my gaming channel is also there, you know. But I will not put the gaming channel. And my Facebook also there. You know my Facebook account is also there. I locked the Facebook and didn't use. So 3 total. Now total 2 channel I am maintaining. But one research topic that my own video, own mobile, that is repaired. So suppose I will repair that, then I will also did that channel, Venkatesh Shashi topic, newly I made in 2 months ago. So I will put the video, try to be some other topics, some new topic. So today, you know my YouTube channel. I will past 3 years I am maintaining the channel. You know,
Then also Corona times also, Failim Nagar Venkatesh Sachi Vlogs, and many channels, my and gaming channel now, and Venkatesh Sachi Lecture 2 channel, and Venkatesh Sachi Topic, and my Facebook account, I will Telegram also, not Instagram, only Telegram and Facebook. My account also, my channel name. So I will put the video ISKCON topic also, Bhagavad Gita lecture in English, my YouTube channel, Venkatesh Sachi Lecture. First YouTube channel is first name is Venkatesh Sachi Vlogs. Then I will change the name Venkatesh into convert it to Venkatesh Sachi Lecture. Change the name. My channel. Past 3 years daily I put the regular video in YouTube channel. My YouTube channel daily I put the video daily. So maintaining. So now I maintain only one channel. For now only. Suppose I today what reason I will talking English, because I will make it in any videos like Hindi, Tamil, English and Marathi. All videos I make it in my YouTube channel. Videos, some only on devotional topic, spiritual world, Adhyatmic Gyan only, devotional, God, only talk about God. So, and my name is Venkatesh Shastri. I am belongs to Iyer Brahmin community. I am joined. I will talk about my story. I joined ISKCON in 2014. Then now 2025. The past 10 years, 10 or 11 years, we will regularly go to satsang, and my YouTube channel. I will already told in my channel, and I made Gopal Krishna Goswami Maharaj video, glorification video. So I may talk about in my post experience. You go to my old videos and check my old videos. You will see in past 3 years I made it. Okay, so that is okay. That's all. So now we will talk about main topic. Why will we come to told to you? So I will let's start. Swaminarayan. Who is Lord Swaminarayan? Gujarati Vaishnav, like Joshi. In other, I am South Indian. I am Tamil, so I will I will make Tamil videos also. Really, I am South Indian. So, but I know all languages because I am living in Mumbai, Maharashtra, India. So, but I know Marathi, Hindi, English. My real language is, my original language is Tamil. I was South Indian, so I know all languages. But didn't know Gujarati also lightly, but Bengali, Kannada, Telugu and Malayalam also lightly, but Bengali, French, Chinese, this is French also lightly we know. English, so all are no English language all person will know, but French and that Bengali language is very hard. Bengali is very hard, not French. Bengali is lightly hard to tell, but Bengali is a very nice language. We will because Lord Chaitanya Mahaprabhu in our ISKCON Gaudiya Vaishnava ISKCON Hare Krishna movement. What Chaitanya Mahaprabhu also Gaudiya, what means Gaudiya Vaishnava? Gaudiya means Chaitanya Mahaprabhu will create this Gaudiya Vaishnava ISKCON Hare Krishna movement, Harinam. So then Chaitanya Mahaprabhu will but this is the Gaudiya Vaishnava is Kolkata Bengal Vaishnava. That is no different, and no Sri Vaishnava. I will talk about clearly startingly. First I will talk about this who is Lord Swaminarayan really. Okay, because I am also in I am Iyer Brahmin, Brahmin Tamil, and
You know Iyer Brahmin, Palakkad Brahmins, and Telugu Brahmins, Kerala. You know South Indian. Where I am also belongs from South Indian. So you know Sri Vaishnavism, Sri Vaishnav, Sri Sampradaya. You know Iyengars. You know Iyengar bakery, but see Iyengars. You know we all are know Iyengars only worship Lord Vishnu. Only worship Lord Vishnu and his avatars, Dasha avatars. We know Dasha avatars. We know Hindu Dharma, Sanatan Dharma, Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Mahesh. And we know we live in India, Mumbai, Maharashtra. India, Bharat Desh, Bharat country, India country. We know we put Independence Day, Vande Mataram, Independence Day, Republic Day, celebrate national anthem Vande Mataram, and our armies, Indian Jawan, Indian armies, Sainika will protect our country. Yes, we know. And here also some warrior kings and warrior kings and warrior people also live in this world, like our Abdul Kalam sir, Netaji Subhash Chandra Bose, Shivaji Maharaj, Bhagat Singh. We know all are Mahatma Gandhi, our Prabhupada ji, our ISKCON Prabhupada ji, Srila Prabhupada, our ISKCON. Yeah, these are our Prabhupada's guru, our ISKCON's guru, Prabhupada's guru. Who is Prabhupada's guru? Our ISKCON Gaudiya Vaishnava Guru Parampara. Prabhupada's guru is, who is the Prabhupada guru? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj is Prabhupada's guru's name. Diksha Guru. We know. So Diksha Guru, Prabhupada's Diksha Guru's name. Diksha Guru, Prabhupada's Diksha Guru. Name is Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. You know, he is the founder of the Gaudiya Math. You know, in ISKCON, our ISKCON Gaudiya Vaishnava Hare Krishna movement, International Society for Krishna Consciousness, we know. We know, you know, ISKCON temples. We also know ISKCON temples. I am also know. You also know ISKCON temples in all country, all India, all state. Total 600 plus 800 temples is there in all over the India country. Out of India also, not only India, our India country. Out of India also, like USA, London, America, foreign, Africa, China. I didn't know China is there, but China also follow like a Buddhism, Jain. But the Gujarati, sometime in my mind come one doubt. Gujarati and Swami Gujarati. No, you know Gujarati language. Gujarati special is what? Dhokla, papada. That is special. Favorite dish is Dhokla, papada. You know. So Gujarati, you know, that sometimes I think Gujarati and Gujarati and Jain Buddhism is related to sometimes, but after I realized, no, Gujarati Swaminarayan, Jainism, you know, Jain also one god, that also Vishnu's. Jain also, but you know, Jain also God very strictly follow.
very strictly follow, strict follow, very strict follow. And what happens, strict follow also, like Iyengars, Vaishnavism, Sri Vaishnav. And in Buddhism also, Buddhism also, who is Lord Buddha? We know Buddha also in Dashavatar come in ninth avatar after Lord Krishna's avatar. Ninth avatar is Lord Buddha, founder of the Buddhism. Buddha is Buddhism follower. That is the Buddha. Lord Buddha is also incarnation of Lord Vishnu Krishna. Lord Vishnu Krishna. We know. So we know Buddhism, Jainism, and this Swaminarayan, Gujarati, Vaishnav. So we should know, we know Dashavatar, yes, Dashavatar, and plus 21 avatars, and Ramayana, Mahabharat, Valmiki, Vyasdev, and Granth also like Bhagavad Gita, Ramcharitmanas, Bhagavad Puran. We know Bhagavad Gita, Ramcharitmanas, and Sundarkand, Vishnu Puran, Shiv Puran. You know, ISKCON also. We should really talk about it. First, I will clearly talk about our ISKCON. ISKCON, we should, all people know, in ISKCON is, I will told already, ISKCON is in all country, in all state. Like India also already there. India country plus 600 plus 800 country, 800 temples is there. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Hare Krishna movement. You know, you all are know, all will know, you all know ISKCON. So I will next talk about all more information about ISKCON. Okay, all good information. So ISKCON also follows Vaishnavism. Gaudiya Vaishnav, created by Chaitanya Mahaprabhu. Who is Lord Chaitanya Mahaprabhu? He is Sakshat Krishna. He is Radha Krishna. You know Radha Krishna, Golok Dham. You know Vaikuntha Dham. But Golok Dham also, our ISKCON follows. Golok Dham is the last destination. The Supreme God Krishna, Supreme Personality of Godhead Krishna lives in the Dham. Our last destination, Golok Dham. Lord Krishna's lived, who will live Lord Radha Krishna in there, lived in the Golok Dham. Okay. So ISKCON follows the last destination, Golok Dham, and ISKCON also follows Vaishnavism. Gaudiya Vaishnavism. Same, Sri Vaishnavism, Gaudiya Vaishnavism, all are same. But Gaudiya Vaishnavism is there, it's created by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnav Parampara. Okay. So Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, Gauranga, Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu will created only for this purpose to Prabhupada also, we know Prabhupada, but Chaitanya Mahaprabhu created only for this purpose to spread the Harinam. Okay, spread the Harinam and spread the Hari Katha, Hari Bhakti only for this purpose. Gaudiya Vaishnavism is ISKCON. Vaishnavism also ISKCON also follows Vaishnavism. Gaudiya, but Gaudiya Vaishnav is created by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Vaishnav, Gaudiya, the name of the Gaudiya is created by Chaitanya Mahaprabhu, Vaishnav. Name is so the name also in ISKCON, that name also is stated
Gaudiya Vaishnav ISKCON Hare Krishna movement, International Society for Krishna Consciousness. That name is, but Prabhupada, our Srila Prabhupada opened ISKCON. But first, Gaudiya Vaishnav ISKCON, and ISKCON is not what should we tell? Not different, same. But you now suppose you confuse, you tell Gaudiya Vaishnav is you told Gaudiya Vaishnav is Chaitanya Mahaprabhu created and ISKCON is Prabhupada created. I will clearly tell you. Listen carefully. The Gaudiya Vaishnav, the Parampara, our ISKCON follows Hare Krishna movement, International Society for Krishna Consciousness. Okay, Krishna Consciousness means always 24 hours, 24/7, always remember Lord Krishna, Lord Vishnu, Hari Smaran, Vishnu Smaran, Krishna Smaran. Always remembering Lord Krishna. Why? This life also is only for dedicated. This life also Samarpan, Sharanagati. We know, we talk about Samarpan, dedicated to Lord Vishnu only, Lord Krishna only. That is our real aim. We should put in our mind and our life target. Suppose, so I will clear you. Gaudiya Vaishnava ISKCON is Chaitanya Mahaprabhu will create our Gauranitai. He is Chaitanya Mahaprabhu, is Chaitanya Mahaprabhu. Radha Krishna combined form. Okay. So Chaitanya Mahaprabhu will created this Gaudiya Vaishnava ISKCON. Okay. Prabhupada, our Srila Prabhupada, our ISKCON founder Acharya. Okay. ISKCON founder Acharya comes in Guru Parampara. ISKCON Guru Gaudiya Vaishnava Parampara, Guru Parampara Acharya is Prabhupada. Is one also Prabhupada is also there. ISKCON Acharya, founder Acharya. You know, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Full name. But we called in short name Srila Prabhupada Ji. Okay, so big name is there. But Prabhupada's original name is what is there? Abhay Charan De. Abhay Charan De. Prabhupada's original name. Srila Prabhupada's original name. Okay. Original name is Abhay Charan De. Abhay, so you should, you know, AC, when it comes to AC, Bhakti, you know AC. What means, what meaning is AC? AC is AC Abhay Charnara Vrind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. That is the AC Bhakti Vedanta. That is the original name. Okay. Prabhupada, Srila Prabhupada's original. You know, ISKCON, AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ISKCON founder Acharya, Prabhupada, Srila Prabhupada Ji, Srila Prabhupada Ji, our Guru, all Guru. Not our Guru, all Gurus. मीन्स मैं को हिंदी में समझा देते हैं, हमारे गुरु नहीं है ISKCON में. जो भी अगर आप ज्वाइन करेंगे ISKCON में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, तो सबके गुरु है वो प्रभुपाद जी. ओके. सपोज अभी आप ISKCON में आके दीक्षा ले, आपने इनिशिएशन लिया, आपने प्रॉमिस किया, मैं शपथ खाया, मैं 16 माला चैंटिंग, हरि नाम चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्रा 16 राउंड रोज कंपलसरी करेगा, और मैं उसका प्रॉमिस भी खाया. मैं सपोज मैं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मैं दीक्षा नहीं ली है, आई डिडंट टेक दीक्षा, मैं लेगा भी नहीं. आई डिडंट टेक टू दीक्षा टू टेक. आई एम नॉट वेरी सिंस आई एम नॉट अथॉरिटी, आई हैव नॉट राइट्स. मीन्स मैं इतना लायक नहीं है दीक्षा लेने की. मैं इतना बड़ा संत नहीं, मेरे कोई अधिकार नहीं है. वो सच्ची बोले होती प्रभुपाद जी है, वो प्रभुपाद जी है. हम वो प्रभु इज द प्रभुपाद गुरु, इज गुरु. वी आर ऑल आर शिष्यस.
ओके। सो ISKCON में अगर आप दीक्षा लेंगे तो आपको 16 माला, अगर दीक्षा लेने से पहले आप महाराज के सामने 16 माला में करेगा, आपके जो दीक्षा गुरु है उनके सामने अगर आप प्रॉमिस करेंगे मैं 16 माला रोज करेगा कंपलसरी, जैसे कि हम खाना खाते अपना रोज रूटीन तो हम करते हैं ना, वी फॉलो डेली अवर रूटीन, डेली लाइफ। सो वी विल ईट स्लीप, मतलब खाना खाते, सोते, बाथरूम जाते, वॉशरूम जाते, नहाते, ऑफिस जाते, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, ये भी हमारे कर्म है ना, ये भी हमारे अपना एक वर्क है, अपना कार्य है। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र है, इसे भी अपना एक कार्य समझ के, अपना एक वर्क मीन्स वी विल फॉलो एज अवर वर्क, अवर कर्मा, वो समझ के और भगवान का भक्ति भाव से करके, प्रेम भाव या भक्ति हो सब एक ही, ऑल आर सेम, वो समझ के उसे हमें करना चाहिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। अगर अपने ऐसा कुछ नहीं, हम ISKCON में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि अगर सपोज आपको अगर नहाने को नहीं हुआ, अगर हम नहा के करें तो अच्छे है। सपोज ISKCON में बोला इन अवर ISKCON वी फॉलो ब्रह्म मुहूर्त, यू नो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 PM ब्रह्म मुहूर्त इज देयर, ब्रह्म मुहूर्त। सो अर्ली मॉर्निंग इन अवर सत्संग, ठाकुर मेरे हम लोग ठाकुर सत्संग में, इन अवर सत्संग श्री चैतन्य भागवत ग्रुप इज देयर। सो दैट इन दैट टाइम्स 2-3 months ago, now only lecture is katha prachar is running, prachar is going on daily. So but that time in Janmashtami 2-3 months ago, Janmashtami times daily early morning in online Zoom meeting, japa section is there, chanting Hari Nam, Hare Krishna Mahamudra, chanting japa mala. So what means what follows, मतलब लोग क्या मानते हैं कि मतलब हमारे ISKCON के भक्त डिवोटीज क्या मानते हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे को उठ के सुबह मतलब सुबह 4 बजे मॉर्निंग, सुबह 4 बजे को अगर आप उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप भगवान का उठ के नहाने तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको शरीर, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ सर्दी है, खांसी, बीमारी है या बुखार है, तो ऐसा भी कुछ नहीं, आप बिना नहाए भी सिर्फ हाथ पाँव धो के, दांत घस के, मुंह सब धो के फ्रेश होके थोड़ा नहाया नहीं तो चलेगा, फ्रेश होके मुंह सब धो के, दांत घस के, ब्रश करके, अपना हाथ पाँव धो के अब ऐसे बैठ के जपा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ISKCON में आए तो मैं नहा के करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। अगर आपको हो रहा नहीं है तो, नहा के आपको हो रहा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आपका, या कुछ अर्जेंट काम है, मुझे बाहर जाना है, तो आप बिना नहाए भी सिर्फ हाथ पाँव थोड़ा शुद्धि भी करके या गंगा जल अपने ऊपर डाल के हाथ पाँव धो के, मुंह धो के, ब्रश करके कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, देयर इज। तो कुछ पाप नहीं लगेगा उसमें, कुछ उसमें पाप नहीं लगेगा, दैट इज नो फॉल्ट, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन, सो कर सकते। मजबूरी है, मतलब आपको नहाने को नहीं हो, मजबूरी है, वो तबीयत ठीक नहीं है, मजबूरी है, नहाने को नहीं है, चलेगा, उसमें कुछ पाप नहीं लगेगा आपको, उसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं, कुछ फॉल्ट नहीं है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। जानबूझ के मतलब मैं जानबूझ के नहीं, मेरे पास नहाएगा ही, मैं ऐसे ही जपा करेगा, क्या बोलते हैं देखते हैं। और मैं ऐसे ही करेगा, मैं जपा करेगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा देखते हैं। मतलब मीन्स वी शुड नॉट टू डू लाइक, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, इसको इंग्लिश में इन इंग्लिश मतलब चलिए मैं इंग्लिश का मेरे को इतना पता नहीं, चलिए तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए, मतलब गलती फॉल्ट नहीं करना चाहिए जानबूझ के, ओके।
तो जानबूझ के करेंगे तो पाप लगेगा। अगर आपको हो रहा नहीं है, मजबूरी है, तो आप भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं। भगवान मेरे को आज नहाने को नहीं आएगा, मैं बिना नहा के गंगा जल करके फिर भी आपका नाम जप में जगह, क्योंकि जो हरि नाम है ना हमारा, अब नहाया नहीं तो चलेगा। मैं लेक्चर में सुने, आई विल लिसन मेनी लेक्चर्स, मेनी कथा ऑफ आवर सत्संग, हरि कथा, कृष्ण कथा, गौर कथा, इन हरि नाम कथा, हरि कथा, you know, ISKCON lecture preacher, many big Maharaj in with this mouth speak, we will tell, मतलब उनके मुखों से मैं बहुत महाराज, हमारे ISKCON के जो महाराज है, हमारे आचार्य गुरु, उनके मुख से मैं बहुत बार सुना है कि कथा, वो जो प्रचार करते कथा करते, तो बोलते अगर हरि नाम करेंगे, अब हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं अपना पाप धुलाने के लिए। We should pure our body and our atma, our soul, and our mind, बुद्धि। तो हम लोग हमारा पाप धुलाने के लिए अपना जो बुरा कर्म है, जो पाप का कर्म है, वो धुलाने के लिए हम उधर जाते, उस गंगा स्नान करने के लिए। क्या करते हैं हम? शुद्धिकरण के लिए नहाते, गंगा स्नान करने के लिए हम नहाते, ये सब करते, लेकिन हम लेकिन शुद्ध नहीं होते, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते नहीं। अभी जैसे रिसेंटली मैं महाकुंभ में भी मैं टीवी में मैं नहीं गया था महाकुंभ में, बहुत भीड़ है बाप रे, लेकिन उतना पैसा भी चाहिए ना। लेकिन महाकुंभ में मैं देखा टीवी में, मैंने देखा बहुत भीड़ था बाप रे। थोड़ा बैड न्यूज़ ये था कि बहुत लोग भीड़ में, क्राउड में, पब्लिक जो थे, पब्लिक क्राउड में भीड़ में जमा होकर बहुत लोग उन्होंने अपना जान गंवा दिया। हाँ, वो थोड़ा वही देखो, मैं रिसेंटली अभी देखा अभी हुआ था ना महाकुंभ जो, तो वहाँ पे मैं देखा कि बहुत लोग जो थे, बहुत सारे ऐसे भक्तजन डिवोटीज थे जो उधर जाके महाकुंभ में जाके अपना जो ये है शुद्ध होने के लिए गंगा स्नान करने गए, गंगा में स्नान करने गए, सब जगह स्नान करने गए। लेकिन भगवान ने क्या बोला है? अगर आपको शुद्ध होना है, पूरी तरीके से शुद्ध होना है, भगवान ने नहीं बोला, मैं आपको इसे बोल रहा, पता नहीं मेरे को किसने बोला, कि मुझे सुना लगता है शायद, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, भगवान ने बोला रहेगा, किधर तो सुना था इसे, किधर भगवान ने बोला लगता है। तो अब देखो, अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, सच्ची में अगर हमें शुद्ध होना है, अपने शरीर को शुद्ध रखना है, ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य शरीर है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसे हमें शुद्ध रखना है ना। क्योंकि मैं आपको पहले में बहुत सारे वीडियो में आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस मनुष्य शरीर, दिस ह्यूमन बॉडी विल ओनली फॉर मोक्षा प्राप्ति, अटेनिंग मोक्षा। यस, मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बोल चुका, बहुत सारे वीडियो में, ये मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य शरीर है, ये सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है हमें। क्या? मोक्ष। ओके, मोक्ष मतलब भगवान के धाम में जाना, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पे रहना, मतलब वापस हमें इस दुनिया में, इस जगत में आने का जरूरत नहीं है, इस दुखालय जगत में वापस हमें इस धरा में जन्म लेने का जरूरत नहीं है, धराधाम में, इस धराधाम में, वो है मोक्षा। तो मैं आपको वो है मोक्षा। और हमारे शरीर में, मैं आपको बताया ऑलरेडी, हमारे शरीर में 9 द्वार है, 9 डोर्स। ओके, 9 डोर में से सपोज हमारा आखिरी समय, क्योंकि हमें पता है भगवान ने ऑलरेडी भगवद गीता में बोल दिया, कृष्ण ने, परमात्मा ने, भगवान ने बोल दिया, अब ये जो हमारा शरीर है ना, हम इसके अंदर के सिर्फ एक आत्मा है, वी आर ओनली सोल्स ऑफ दिस बॉडी, वी आर नॉट बॉडी, मतलब हम इस शरीर के अंदर के एक आत्मा है। ओके, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस टॉपिक, मेनी वीडियोस, मेनी लेक्चर्स इन माय यूट्यूब चैनल, you know, past 3 years I will maintain this
channel. Okay, daily, regularly I put this video. Okay, so ये मनुष्य शरीर जो है वेंकटेश शास्त्री लेक्चर YouTube channel. But what is the specialty in my video? You put this specs. मतलब मेरे को एक चश्मा है जो मेरे रोज हर वीडियो में अपने देखा है 2-3 सालों में हर वीडियो में कोई चश्मा देखा रहा। वो क्या कारण है कि मुझे थोड़ा आँख का प्रॉब्लम है, इसके लिए जो चश्मा नंबर है इसके लिए बचपन से ही है, अभी से बचपन से ही है। जब मैं 6 साल का था, 6-7-8 साल का था, तभी से वो चश्मा लग गया, वो बचपन से ही है। इसके लिए वो कुछ नहीं, वो बड़ा बात नहीं है, चश्मा है तो क्या, नहीं है तो क्या, हमें क्या भगवान का भक्ति कर रहे हैं बस। तो ये चश्मा जो मेरे को अभी कितना 19 ईयर्स हो गया, मैं अभी 19 साल का, मैं 2006 31 अगस्त का। ओके, तो अभी मेरा 19 ईयर्स हो गया, 19 ईयर्स है मुझे। तो 24 साल तक, 20 ईयर्स तक, मेरा एज तक, उम्र तक कोई चश्मा रहेगा। उसके बाद क्या नंबर कम हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तब का तब लेंस लगाए तो पैसा रहेगा तो देखा जाएगा। लेकिन नोटिस किया रहेगा मेरा ये 2-3 साल से मैं वीडियो बना रहा है, हर वीडियो में मैं जब इस्कॉन का, जब हरे कृष्णा का, मैं कृष्णा का था डिवोटीज में बता रहता, मैं लेक्चर दे रहा था भगवान के कृष्ण लेक्चर, इस्कॉन तिलक लगाया, मैं आपको इस्कॉन का तिलक लगाया, मैं चश्मा, तो अपने देखा रहेगा हर वीडियो में यही चश्मा है, यही चश्मा है, जो सेम चश्मा रोज वीडियो अपने देखा रहेगा, आपने देखा रहेगा। हाँ, यू शुड सी दिस माई स्पेक्स। तो वही कारण है कि 2-3 मेरे को बचपन से चश्मा है, मैं 6 साल का था तब से मेरे को चश्मा लगाए, मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा बचपन से ही, आँख का थोड़ा प्रॉब्लम, वैसे नंबर कम है, फिर भी चेकअप हो रहा है, ड्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, वो बड़ा नहीं प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ठीक है, वो बड़ा नहीं। लेकिन क्या है, इंसान का लाइफ में आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आँख की जरूरत है बहुत, आँखें जो है ना, आँख तो बहुत जरूरत है। बिना आँखें, विदाउट आइज, बिना नेत्रों के बिना आइज, विदाउट आँखें, बिना आँखों के बिना हम दुनिया को देख ही नहीं सकते, अंधे हो जाएंगे, कैसे भी दिखेंगे दुनिया को, बाप रे। ऐसा हालत किसी का ना हो, क्योंकि मैं जो मैं प्लेटफॉर्म में देख रहे बेचारे लोग, किसी को आँख नहीं, अंधे, इनको नज़र नहीं, जो इनको विजन नहीं है आँखों में, उनको देखो उनका दर्द कैसा, मैं उनका दर्द को मैं समझ सकते कि उन लोगों को कितना होता हो कैसा। बिना हम लोग को सपोज देखो 1 सेकंड के लिए हमारा आँख बंद करेंगे ना, हमें बापरे अंधेरा डर लगता है ना, तो वो लोगों को देखो कैसा लगता होगा, वो लोगों का हालत देखो कैसा लगता होगा, वो लोगों का सिचुएशन देखो। उसके लिए इंसान का लाइफ में क्या है, बॉडी में सब पार्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा ह्यूमन बॉडी में, हमारे इंसान का शरीर में सब बॉडी का सब पार्ट, ह्यूमन बॉडी में सब पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा आँखें, हमारे नेत्र, हम लोगों का आँख, our eyes are very important in our life, human life, our eyes are very important in human body। उसके आजकल देखो मोबाइल देख रहे, मेरा भी यही हालत है, मोबाइल देख के मेरा का ऑपरेशन भी हुआ, रेटिना ऑपरेशन, तो कैटरेक्ट मेरे को नहीं हुआ, अभी ओल्ड एज लोगों को कैटरेक्ट होता है, बहुत लोग होते हैं, क्योंकि विजन इंपॉर्टेंट है ना। हम इस दुनिया से तो सब कुछ देख रहे, भगवान को देख रहे, हम हमारे खुद को भी, हम हमारा खुद का रूप, हमारा खुद का फेस, हमारा खुद का बॉडी को, हमारा खुद का फॉर्म को हम आंखों के द्वारा ही देख पा रहे हैं ना। इसके आंखें देखो इम्पोर्टेंट है बहुत लाइफ में, इंसान का बॉडी में ही, ह्यूमन बॉडी में आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इज आइज। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट आइज इन अवर ह्यूमन बॉडी, विदाउट आइज वी कांट डू एनीथिंग। इसके लिए थोड़ा अपना आँख का भी अब ख्याल रखना, ज़्यादा स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरे को ऐसा चश्मा लगा, मैं देखा बहुत लोगों को, अभी तक छोटे बच्चों को भी 2-3 साल के, 4 साल के, उनको भी चश्मा लग गया। स्मॉल किड्स, छोटे जो बच्चे हैं उनको भी चश्मा लग गया। स्पेक्स, मेरे जैसा स्पेक्स है ना, ये मैं चश्मा पहने, देखो स्पेक्स, चश्मा निकालेगा तो मैं कैसा अजीब सा लग रहा है, इसका चश्मा डालेगा तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो जो छोटे बच्चे को भी चश्मा है, यही उम्र में चश्मा, स्पेक्स,
लग गया है मोबाइल देख देख के। इसके मोबाइल से अब थोड़ा ज़्यादा दूरी रखना, क्योंकि रेडिएशन है हमारे आँख में जाते हैं। और ये मोबाइल ख़राब चीज़ भी है, एक तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब चीज़ भी है। और ऊपर से क्या है, मोबाइल दिमाग भी ख़राब कर देता है, हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब कर देता है। हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो भी ख़राब कर देता है। इसके लिए देखो मेनी केसेस, पबजी आया है। देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, कंट्री के, इंडिया के, उन्होंने देखो पबजी को ही, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर विल क्या बोलते, बैन द पबजी गेम। बहुत खतरनाक गेम है, बाप रे पबजी। देखा ना कोरोना के टाइम को, पता है कोरोना के टाइम में कितना कुछ प्रॉब्लम हुआ, बाप रे। सबका काम गया, नौकरी गया, सब घर पे बैठ गए। हाँ, सब घर पे बैठे, सबका वांदा हो गया, कुछ करने को नहीं हुआ बेचारे। ये पबजी भी बीच में, इडियटिक गेम है एक तो, पबजी बीच में आया, सब घर पे बैठ गए अपने। एक लड़का तो मैं देखा उस दिन, ये पबजी गेम की वजह से एक लड़के ने अपने बाप को ही, ये पबजी की वजह से इतना बड़ा पैन लिया, अपने बाप को ही मार दिया, बिकॉज ऑफ दिस पबजी गेम। इसकी वजह से, इसके लिए आप जरा संभाल के रहो अपने बच्चों के हाथ में। ये गेम जो है, ये पबजी, वैसे तो मेरे उम्र के लड़कों भी खेलते, मेरे उम्र के लड़के भी खेलते, लेकिन अभी वो नहीं खेल रहे, क्योंकि पबजी गेम बैन खेल। तो मेरा भी 19 ईयर्स है। अच्छा हो गया मेरे को पबजी गेम तब तो कुछ पता ही नहीं था ज़्यादा, इसके लिए मेरे को मैं इतना कुछ, क्योंकि तो मैं कोरोना को, जब कोरोना टाइम था 2019-20 में, तभी मेरा उम्र कितना, 13 साल का था। तब मैं 13 का था, 13 ईयर्स का था, 13 साल का। अभी मेरा 19 ईयर्स है, सर 13-14 साल पकड़ो तभी था। अभी मैं 19 ईयर्स का। तो तभी की उम्र में खेलते हो गए क्या? अभी का उम्र में बच्चे, मेरे उम्र के जो लड़के हैं, मेरा भी 19 साल का है, मैं 19 ईयर्स का एडल्ट है। तो मेरे उम्र के जो लड़के हैं 19 ईयर्स के एडल्ट है जो, वो लोग नहीं खेलते होंगे लग रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं खेलते हैं। तो वो लोग खेलते होंगे क्या पता है, खेलते होंगे ज़्यादा नहीं। वो लड़का जो मैं बोला था आपको, वो लड़का जो था 24 घंटा पबजी, उसके वजह से उसके पिताजी, उसके फादर ने उससे मोबाइल छीना करके ये क्या किया, पैन को उठाया, जो डोसा बनाते ना पैन, या सैंडविच गर्म कर देते, वो स्पेशली डोसा बनाते, वो पैन उठाया, डोसा बैटर जो डोसा बना के खाते, पैन उठाया, अपने बाप के सर पे मार दिया, पिताजी का। उसके फादर, उसके पिताजी वहाँ पे स्पॉट, इन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, डेथ, आउट। और ज़्यादातर क्या है, ये केसेस मद्रास में नहीं, तमिलनाडु में ही, चेन्नई में भी नहीं, अपने महाराष्ट्र, अपना इंडिया जो है, अपना महाराष्ट्र, मुंबई, इधर भी है। ये पबजी गेम बहुत ही खतरनाक है। अच्छा हो हमारे जो मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पबजी को सच्ची में बोल रहे बैन कर दी। जो दुनिया का क्या हालत होता पता नहीं। अरे अभी के जो बच्चे अच्छे हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अभी के बच्चे तो संस्कारी भी है, अच्छे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे, भजन कर रहे। मेरे को नहीं बोल रहे मैं, मतलब मेरे उम्र के ऐसे लड़के लोग भी संस्कारी भी है। अरे अभी मैं हम लोग सत्संग में देखो, एक छोटा सा 3 साल का लड़का है, स्मॉल बॉय, स्मॉल बेबी, 3 years old बेबी बॉय। मतलब वो लड़के को देखो, मैं देखा, मैं उस दिन आपको बोला था, वो मैं 2-3 महीने पहले मैं बोला था आपको, वो वीडियो में हरे कृष्णा का लेक्चर वीडियो बना रहा था, तब मैं आपको बताया। तो उसमें देखो मैं बोला, वो छोटा सा लड़का, वो भागवत कर गया ना, वो अलग है, मैं उसका बारे में, हमारे सत्संग में लड़का है, इसका भी उम्र है, नहीं इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, 1-2 साल का रहेगा, भागवत से ही छोटे लगते। ओके, तो देखो वो लड़का हमारे सत्संग का, मैं सत्संग में लड़का है, उसका बात कर, छोटा बच्चा है लड़का, और वो इतना भक्ति है सच्ची में, बचपन से, अभी से ही हमारे इस्कॉन में जो सत्संग, हमारे इस्कॉन जो सत्संग है ठाकुर में होते हैं, वो बच्चा देखो अभी से ही, तो वो बच्चा देखो अभी से ही
रोज रोज आता है वो बच्चा, तुरंत जगह भगवान के ऊपर, भगवान के सामने गौर नृत्य, जो गौर नृत्य हमारे चैतन्य वहाँ पर हुए, हाँ गौर नृत्य हमारे इस्कॉन में, उनको लगे दंडोत प्रणाम करेगा और सबको हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी सब बोलेगा। छोटा सा बच्चा है वो। आजकल के हाँ हमारे जैसे लड़के, जो मेरे से उम्र के लड़के जो 19 ईयर्स, मेरा 19 साल का, मेरे से 19 साल के जैसे जो लड़के 19 ईयर्स के अडल्ट है, जो अडल्ट है, उन लोगों को इस सीख है, उन लोगों को एक सीख है, एक सीख मतलब क्या है, लेसन है उन लोग। एक देखो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को देखो, संस्कारी है वो भी। आजकल के ये संस्कार, आजकल के छोटे के बच्चे जो संस्कारी उन भगवान को पूछते, उनको संस्कारी देखना बहुत ही रेयर है, वेरी रेयर। और बाकी के बच्चे को देखो, बाहर के जो है छोटे बच्चे क्या खेल रहे, मोबाइल, हमेशा मोबाइल हाथ में देखो, उनके हाथ में देखे तो हमेशा मोबाइल, या कुछ मोबाइल ऐसे उंगलियों से कुछ गेम में दबाएंगे, ऐसे उंगलियों से अपनी फिंगर से अपनी उंगलियों से कुछ दबाएंगे, कुछ तो करते नहीं। स्पेशली वो ये तो बच्चा सच्ची में हमारे सत्संग में जो लड़का है, छोटा सा बच्चा है, उसको देखे मुझे एक सीख मिली है। अरे देखो छोटे बच्चे को देखो और मुझे देखो, थू है मेरे को तो, क्योंकि मेरे को मैं जब छोटा था मुझे भी भक्ति है। मैं जब इस्कॉन में ज्वाइन हुआ, आपको बोला मैं ऑलरेडी, आई विल ज्वाइन इन 2014 इस्कॉन। तभी मेरा उम्र कितना था, 8 साल का था। तभी मैं आपको बोला मेरा जन्मदिन 2006 2006 31 अगस्त, मैं तभी 8 साल का था। मुझे इतना लेट ही आया, 8 साल की उम्र में मुझे भक्ति आया। ये बच्चे को देखो, हमारा सच्चा लड़का है, 1-2 साल का ही है, बोले वो भागवत से गीता.com में आता है ना, वो भागवत का लड़का 3 साल का, वो 3 साल का, ये शायद उससे थोड़ा छोटे। वो बच्चे को, वो भागवत को देखो, इसको देखो, मेरे को देखो, खुद के में अपना आईने में अपना मैं चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, शक्ल देखते हैं, थू कर दे, थू है क्या है भाई। सीखो भाई कुछ तो, बच्चों से सीखो कुछ तो, छोटे है जो। हाँ उल्टा क्या है, बड़ों से बच्चों को सिखाया जाता है, अभी उल्टा हो गया। अच्छा है, कुछ बड़ा कुछ वो गलत नहीं। अभी जो छोटे से अभी बड़ों को सीखना पड़ रहा है, क्योंकि जमाना कभी भी बदल सकते हैं वैसे, तो ऐसे ठीक है, कुछ बड़ा बात नहीं है, अच्छा ही है, कुछ बुरा इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, नेगेटिव इंटेंशन से नहीं है, पॉजिटिव इंटेंशन से, कुछ पर्सनल वेंजेंस नहीं है ना, अच्छा ही तो कर रहे हैं ना, अच्छा ही हो रहा है। तो अपना आइस जो है, ह्यूमन का, जो इंसान का आँख है, ह्यूमन बॉडी जो आइस है, हमारे इंसान का आँख है, नेत्र है, आँख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, हमारा दुनिया से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा दुनिया को हम देख रहे हैं, हमारा थिंकिंग कैसे है, वैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा दुनिया में दिखेगा। जैसे कि मैं देख रहे हैं वैसे आपको भी दिखेगा, दिखता होगा। मतलब कोई भगवान नहीं कि मैं बोल रहा है आपने, वैसा नहीं, मतलब बोल रहा है मैं, मेरे को क्या दिख रहा है वो भी आपको ही दिख रहा है, बरोबर ना। तो वही मेरे को क्या दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा है, कुछ उसमें कोई डाउट नहीं। तो कोई विजन है, ये हमारा आँख का जो विजन है, ये हम देख रहे हैं। इधर ये देखो, ये हमारा ये है ना, ये हमारा आईब्रोस है, आईब्रोस मतलब ये आईब्रोस है, इधर भी बाल रहता है आईब्रोस, और ये हमारा आँख है, आईज है। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टमेटिक भगवान ने बनाए फंक्शन, आई कलर, आई बॉल, आँख में खून भी रहते हैं वो अलग है। ये आई बॉल देखो, उसमें कलर भी डिजाइन कलर बने हैं, जैसे रोबोट का शरीर तो ऐसा हमारे हम भी रोबोट जैसे है ना इंसान। रोबोट में क्या है, फीलिंग्स इमोशंस कुछ नहीं है, वो रोबोट है, उसमें कुछ दिल नहीं है। हमारे इंसान में मन है, बुद्धि है, सब है। इसके हम इंसान है, हम मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। तो हम मानव, मतलब ह्यूमन बीइंग, इंसान, मनुष्य, हम मानव जाति है हमारा। तो
तो देखो अंदर देखो जो आई बॉल है, विशन है, विशन से हम देख रहे हैं ना, और आई बॉल है, और कोई लोग तो लेट जो लड़कियां हैं, स्त्री है, काजल पहनते, मेकअप पहनते, लिपस्टिक लगाते, वो अलग से बिंदी लगाते, अलग से सुंदरता है वो, अलग से वो ब्यूटीफुल है। आजकल का सिनेमा में देखो, पिक्चर में देखो, नेचुरल ब्यूटी में भी नहीं, सिनेमा में मेकअप लगाएंगे, पिक्चर में एक्टिंग करते टाइम मेकअप लगा अच्छा दिखेंगे, मेकअप उतारा तो उनका नेचुरल ब्यूटी, उसका असली सुंदरता देखो, नेचुरल ब्यूटी, उनका असली शक्ल, असली फेस इतना बाबरे इतना इतना गंदा दिखेगा ना, सच्ची बोलेगा तो वो हम लोग देख चौंक जाएंगे, ये अरे अच्छा ये वो एक्टर था क्या, ऐसा हम शौक हो जाएंगे देख के। आजकल का वही रियलिटी। बाकी हम एक्सरसाइज करते, अपना पेट का जो बेली फैट है, जो हमारा बेली है, चर्बी कम करते, एक्सरसाइज, जिम जाते, नॉनवेज खाते, वो ये सब बॉलीवुड में और सब जगह में हो रहा है। लेकिन जो धार्मिक है और संस्कारी है, जो जानता है कि ये नॉनवेज खाना ये सब गलत है, तो वो ये सब नहीं करेगा। क्यों बताए? उसे पता है ये नॉनवेज खाना गलत है, हम दूसरे का मांस खा के एक जानवर को मार के खा रहे हैं, वो गलत है, वो उसे पता है। क्योंकि जानवर का मिलजुलिंच होते हैं। मैं आपको बोला रहेगा, विश्वग्रेस अमोघलीला प्रभु जी इस्कॉन द्वारका के जो गुरु है, जो लेक्चर प्रचार है, जो लेक्चर देते, प्रचार करते, गुरु मतलब वो प्रचार कर ले, गुरु नहीं है, वो प्रचार कर ले, लेक्चर देते हो। तो वो देखो, वो प्रचार कर, वो उसमें बोलते हो लेक्चर में, अमोघलीला प्रभु जी इस्कॉन द्वारका में जो ही विल टेल कि मांस नॉनवेज खाना, मांसाहारी वरना मांस खाना, नॉनवेज खाना, ये क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों गलत है, सब बोला है, उन्होंने बोला है। अब उनके वीडियो चेक, मैं बोल रहा हूँ, आपको पता रहेगा, उनका वीडियो चेक करो जाके जाए तो, इस्कॉन द्वारका अमोघलीला प्रभु जी, तो उन्होंने बोले। अब बाद में क्या है कि क्योंकि हम इंसान का अपना बॉडी है, जो है हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर है, हम इसमें खा सकते, हम अपना चमड़ी, हमारा स्किन जो है, हमारा चमड़ी जो है, हमारा स्किन है, देखो स्किन है, चमड़ी है, इसमें हड्डियाँ भी है, मसल भी है, ये हड्डियाँ है। अगर हम हमारा ये जो स्किन है ना, ये हमारा मांस है, जो स्किन है, हमारी चमड़ी है, इसको हम फाड़ के अगर हम करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? हड्डी। क्या बचेगा? हड्डी, मसल। भगवान ने एकदम फंक्शनिंग, एकदम सिस्टमेटिकली ये बॉडी को बना के भेजे हमें इधर, क्योंकि भगवान है, उनका क्रिएशन ही, गॉड्स क्रिएशन बोला जाता है ना, भगवान का क्रिएशन ही अलग है, इतना ब्यूटीफुल है, सच्ची बोले तो उनका क्रिएशन एकदम ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर है एकदम। वो उनके जैसा क्रिएशन कोई कर नहीं सकते, उनके जैसा दुनिया बना, इतना सुंदर दुनिया बनाना, वृक्ष, पौधे, झाड़, रेनबो, बटरफ्लाई, मोर, रैबिट, ऐसा सब सुंदर जो हम देखते, रिवर, ये सब इतना सुंदर दुनिया, इतना ब्यूटीफुल दुनिया भगवान के अलावा तो कोई बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हम इंसानों को भी इतना सुंदर बनाया है, ये भगवान ने तो बनाया ना। और ये सब सुंदर का कारण क्या है? हमें क्या लग रहा है? माया शक्ति, माया देवी है, माया के कारण ये दुनिया इतना सुंदर लग रहा है। वो माया भी किसका है? भगवान का है, कृष्ण का है वो भी। माया के कारण हम इतने सुंदर लग रहे, हम भी इतने, इंसान भी इतने सुंदर है। अब अपना रोज अपना शक्ल देख रहे हैं ना, अपना आईने में अपना फेस देख रहे, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा मेरा लुक कितना अच्छा है, अपना फिजिक्स, अपना बॉडी अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, ये सब माया का ही कारण है। और क्या लग रहा है आपको? सब माया का ही कारण है, सब माया ही चला रही है सब। देखिए माया भी किसका है? भगवान का है, वो भगवान का ही है माया भी। अरे विराट स्वरूप अपने देखा है ना, ये दुनिया में सब कुछ जो भी है, हम इंसान भी, सब जीव राशि, सब भगवान के, परमात्मा,
मैं ऑलरेडी आपको बताया, आत्मा जो परमात्मा है, जो हम आत्मा है शरीर के, और परमात्मा जो है आत्मा, हम मनुष्य के अंदर हमारा जो आत्मा है, परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा बसते हैं। कौन परमात्मा? कृष्ण, विष्णु। कृष्ण ही जो है भगवान, परम भगवान, सच्चिदानंद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, परम भगवान है जो कृष्ण। वो हमारे कृष्ण विष्णु जो भी है, वो हमारे यहाँ पे हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज लगा रहे, गूंज दे रहे, गूंज लगा रहे, भक्ति कर, भक्ति कर। हमें सुनाई नहीं दे रहे, ऐसा मत कर, वही हमें सब आवाज दे रहे। हमें पता नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहे, भगवान सब कुछ कर रहे, वही सब करवा रहे हमें। अच्छा काम जो है वही सब हमें करवा रहे। लेकिन हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं ना, जो गलत कर रहे जीवन में, लाइफ में, जो बुरे कर्म, जो गलत काम कर रहे हैं ना, ये कौन करवा रहा है? माया शक्ति, माया देवी। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। हमें लगता है कि ये दुनिया में एस्ट्रॉइड आया, तूफान आया, सुनामी आया, अरे भगवान बहुत बुरे हैं, ये भगवान साहब हमेशा गलती करते, भगवान में बचा लेता ही नहीं है। नहीं, भगवान ने भगवत गीता में ऑलरेडी बोल दिया, भगवान ने, कि ये सब कुछ जो ये दुनिया में चल रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, तो सुनामी आ रहा है, जो भी आ रहा है, या बाढ़ आ रहा है, या बड़ा भूकंप आ रहा है, ये सब का कारण तूफान आ रहा है, ये सब का कारण मैं नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है। ये कर्मा जो नेचर है ना, कर्मा नहीं, नेचर जो पृथ्वी का अंतरिक्ष है, जो कर्मा है वो सब करवा रहे। जो माया है, मतलब माया भी नहीं, माया तो हमें, माया क्या जो बताया, ये दुनिया में, हम दुनिया में इतना इजीली जी नहीं सकते। और हम कृष्ण भक्ति को बोल रहे हैं ना, स्पेशली भक्ति में कृष्ण भक्ति इस्कॉन में हम वैष्णव जो बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति में हम इतना इजीली नहीं कर सकते। क्यों बताए? क्योंकि माया शक्ति हमें माया योग माया है, हमें पता है, वो भी कृष्ण का ही है, योग माया देवी शक्ति, जो माया देवी योग माया कौन? सुभद्रा देवी, जो जगन्नाथपुरी में हम बोलते हैं ना, जगन्नाथ जी, बलदेव, बलभद्र, सुभद्रा, जो उड़ीसा में है, पूरी जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में जो सुभद्रा देवी जो है, सुभद्रा जी जो है, जो कौन? कृष्ण के सगी बहन है, ओन सिस्टर, ओन यंगर सिस्टर, सगी छोटी बहन है कृष्ण भगवान की कजिन छोटी बहन है। कृष्ण की बहन तो बलराम जी की भी बहन ही है, सिस्टर है। तो योग माया ही सुभद्रा जी के रूप में है, ओके, एक रूप से बोला जाएगा। और पार्वती जी बोलते ना, शिव जी के, महादेव के, भोलेनाथ के। पार्वती जी भी कौन है? दुर्गा है ना, शक्ति, शिव और शक्ति बोला जाता है। तो शक्ति कौन? दुर्गा। तो दुर्गा भी एक्चुअली योग माया देवी जो है वो एक्चुअली दुर्गा ही है, दुर्गा का एक स्वरूप है। तो दुर्गा तो इसमें भी है, पार्वती है, और लक्ष्मी, सरस्वती सब इसमें है, सब दुर्गा ही है, सब दुर्गा, लक्ष्मी, सब पार्वती, योग माया सब एक ही। इसमें कुछ फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, कोई इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। तो टाइम कितना बजे देखते हैं? तो भगवान ने बोला ये दुनिया में सब जो 4:30 हो गया, मैं एक 15 मिनट और लेगा, ठीक है? पार्ट 2 बन सकते हैं। तो आज पार्ट 2 में मैं ख़त्म करने का सोचा। आई विल कंप्लीट इन द पार्ट 2 वीडियो ओनली। आई विल स्टॉप इन पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट आई विल स्टॉप, आई विल ट्राई। तो मैं पार्ट 2 वीडियो में, एक टाइम में पार्ट 2 वीडियो में कम से कम स्टॉप करने का सोचता है। तो पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट 5 चलता ही जाएगा। अभी तो रोज़ वीडियो में बोलते जाते हैं, मेरे को टाइम पता नहीं चलता, टाइम समय क्या ज्ञात ही नहीं रहते, तो बोलते ही जाते हैं। तो क्या वो टाइम हो जाता है मेरे को, बाद में मेरे को बहुत लेट हो जाता है उनमें। तो इसके मैं आज में थोड़ा जल्दी स्टॉप करना है, जल्दी में समाप्त करने का मैं कोशिश करें। उसके बाद मेरे को काम भी है, रोज़ हम करते हैं, जो थोड़ा पर्सनल भी काम है। तो
तो हम आगे बढ़ते। अभी ऑलमोस्ट कितना बजा, 4:40 हो गया। आज क्या 22 मार्च है 2025, 22 मार्च है सैटरडे। तो ऑलमोस्ट 4:40 हो गया। तो मैं एक और 15 मिनट लेगा, कम से कम 5-10 तक तो मैं कंप्लीट करने का सोचते, स्टॉप करने का। तो मैं स्टार्ट करते, विश्राम लेके 5-10 तक मैं कंप्लीट करना सोचते। तो चलो हम कंटिन्यू करते फिर। तो भगवान जो है, जो मीन्स गॉड इज इन ऑल ओवर, इन ऑल इज मतलब बोलते ना, पृथ्वी में भगवान है, जल में, आयु में, आकाश में भगवान है, सब जगह भगवान है। क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान विष्णु के जो दशावतार में से कृष्ण के, मतलब कृष्ण विष्णु की दशावतार में हमें पता है बोला गया है कि नरसिंहदेव अवतार हुआ था। नरसिंह जी का जब अवतार हुआ था, क्या हुआ, जब नरसिंह जी का अवतार हुआ था तो क्या हुआ था, नरसिंह जी का अवतार हुआ था। तो जब नरसिंह जी का जब अवतार हुआ तो हिरण्यकशिप जो था, हिरण्यकशिपु दशावतार में बताया ना ऑलरेडी। हिरण्यकशिपु जो था वो एक्चुअली एक मिनट, हाँ, हिरण्यकशिपु जो था वो वैकुंठ